میرا نام ریاض صادق ہے اور میں گڈ نیوز چرچ میں بطور پاسبان خدمت کرتا ہوں۔ میرے خاندان کی طرف سے اور گڈ نیوز چرچ کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں بڑے دن کی ڈھیروں خوشیاں جو ہیں مبارک ہوں۔ خوب انجوائے کریں، خوب مزہ کریں اور آئیں سیکھیں کہ آج کلام مقدس میں سے میں کس ٹاپک میں بات کروں گا۔ میرا آج کا عنوان ہے اگر کلام مجسم ہوا تو خدا مجسم ہوا۔ If word became flesh, then God became flesh۔ تو ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ابتدا کے معنی کیا ہے۔ انگلش میں آیا ہے in the beginning۔ یہاں بھی in the beginning کے ورڈز آئے ہیں، یعنی کہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، اور پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں بھی in the beginning یعنی ابتدا میں کے الفاظ آئے ہیں۔ تو ابتدا میں یا in the beginning کا مطلب ہے before creation، قبل تخلیق۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تخلیق سے پہلے کلمہ تھا، کلام تھا، the word تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق سے پہلے کلام موجود تھا۔ اور کیسے موجود تھا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب خدا نے کہا روشنی ہو جا تو گاڈ اسپوک، خدا نے کچھ بولا۔ یہ جو بولا ہے یہی ورڈ ہے، یہی کلام ہے، یہی کلمہ ہے۔ تو کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت پڑھتا ہوں۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور جب خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ تو گاڈ اسپوک، جو خدا جب بولتا ہے تو یہ ورڈ ہے، یہ کلام ہے، کلمہ ہے، اور اسی کے لیے یوحنا نے لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا۔ تو ابتدا میں کلام تھا یعنی بیفور کریشن، تخلیق سے پہلے کلام تھا، اور جب خدا نے کہا ہو جا تو اس کا مطلب خدا نے اپنا کلام استعمال کیا اور تخلیقات ہوئیں اور سب کچھ وجود میں آیا۔ اور آج بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کلام سے ہی سب کچھ تخلیق ہوتا ہے۔ لیکن چلتے ہیں، موقع ہے کرسمس کا، بڑے دن کا، یسوع مسیح کے جنم دن کا، تو میں بات کروں گا کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ بھی کلام ہی کے وجہ سے حاملہ پائی گئی۔ فرشتے کا ایک کال ہوا، فرشتے نے ایک بات چیت کی، فرشتے نے کلام سنایا، اور اس کا مقدسہ مریم کا جواب تھا میں تو کنواری ہوں، میں کیسے بیٹا جنم دے سکتی ہوں؟ لیکن جب فرشتے نے کہا کہ ایسا ہوگا، تیرے بیٹا ہوگا، تو ہم جواب دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کا رد عمل۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یعنی جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے، یعنی کلمہ یا کلام جو تو نے بولا ہے، میرے لیے اس کے مطابق ہو۔ اور مریم نے فرشتے کے قول کو ریسیو کیا، اور یہی اس کا ریسیو کرنا جو ہے اسی وجہ سے مریم کنسیو ہوئی۔ گویا کلام کی وجہ سے مریم جو ہے وہ حاملہ ہوئی۔ گویا کلام مجسم ہوا، اور پھر کلام نے جسم لیا اور وہ چرنی میں آیا۔ اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں، یہ لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہی کلام مجسم ہوا جو تخلیق سے پہلے تھا، وہی کلام مجسم ہوا جیسے خدا نے کہا ہو جا۔ یہ وہی الفاظ ہیں، یہی خدا ہے، کلام ہی خدا ہے۔ اور تو کون سا کلام مجسم ہوا؟ جو ابتدا سے تھا، جس نے عالم پیدا کی ہے، جو خالق ہے۔ عبرانیوں کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی بنیاد ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ اس کا مطلب ابتدا ہی سے خدا نے زمین کو خلق کیا۔ اور یہاں جو لفظ آیا ہے خداوند، خداوند کے الفاظ زیادہ تر جو ہے وہ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہیبرو میں جو خداوند کے لیے لفظ ہے وہ یاوے ہے، گاڈ ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی بنیاد ڈالی، تو اس کا مطلب اے یاوے، اے خدا، اے یہوہ
تو نے زمین کی بنیاد ڈالی. لیکن تھوڑی دیر پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کلام سے سب کچھ وجود میں آیا, اور یہاں عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے سب کچھ کی بنیاد ڈالی. تو مطلب یہ ہوا کہ کلام اور خدا ایک ہی ہیں, اور یہاں خداوند کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح, خدا اور کلام ایک ہی ہیں. پریز دی لارڈ. اب سب کو ایک دفعہ پھر بڑا دن مبارک ہو, اور آپ میرے ساتھ مل کے کہیے ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. تو آپ سمجھ گئے کلام مجسم ہوا کہ معنی کیا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اب سمجھ گئے ہوگے. اب ہم غور کریں گے کہ کلام مجسم ہوا, تو کلام ہی چونکہ خدا ہے تو ہم غور کریں گے خدا مجسم ہوا. پہلے ہم نے بات کی ہے دا ورڈ بیکیم فلیش, اب ہم بات کریں گے گاڈ بیکیم فلیش, خدا نے جسم لیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان خدا بن جائے, انسان کبھی خدا نہیں بن سکتا. وہ یہ کہتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, انسان کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا. مین کین ناٹ بیکم گاڈ ایور. تو پھر جب نہیں بن سکتا تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیسے انسان بن گیا, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں انسان خدا نہیں بنا, خدا انسان بن گیا. گاڈ بیکیم فلیش, خدا نے بدن لیا, خدا مجسم ہوا. تو ہم غور کریں گے کہ خدا مجسم ہوا. اس کے لیے میں دوبارہ جاؤں گا واپس یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت کی طرف, جو ہماری پہلی آیت تھی, جو ہماری سنہلی آیت تھی. یہاں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اگر ہم نے یہ ثابت کیا کہ کلام ابتدا سے ہے, تو اب ہم یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ کلام ہی خدا ہے اور کلام ہی خدا تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ جو کائنات ہے, جو وجود میں آئی, وہ کس طرح سے آئی؟ کلام کی وجہ سے, اور کلام مجسم ہوا اور خدا مجسم ہوا, خدا نے جسم لیا. تو دوستو بہنوں بھائیو, خداوند یسوع مسیح چرنی میں آیا, اس نے بچے کے روپ میں آ کر ساری دنیا کو خوشخبری دی کہ یہی بچہ جو چرنی میں آیا ہے یہی دنیا کا نجات دہندہ ہوگا. اور یہی بچہ جو چرنی میں پیدا ہوا, ہی واز فلی گاڈ. مطلب خدا مجسم ہوا, چرنی میں جنم لیا, اور خداوند کے الفاظ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ لفظ جو خداوند کا لفظ ہے یہ یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو یہ خدا نے جسم لیا, لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ماضی میں, یعنی خداوند یسوع مسیح کے جنم سے پہلے بھی جسم لے کر آتا رہا زمین پر. آپ حیران ہوں گے, لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے کہ روح القدس پینتیکوست کے دن نازل ہوا, اور نازل ہونے سے پہلے بھی روح القدس گاہے بگاہے زمین پر آتا تھا, اور کسی خاص مقصد کے لیے, کسی خاص موقع کے لیے, کسی خاص پیغام کے لیے روح القدس آتا تھا کسی خاص شخص پہ, اور اپنا کام کر کے روح القدس واپس آسمان پہ چلا جاتا تھا. ایسے ہی خدا مجسم ہوتا رہا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کی پہلی آیت, یہاں لکھا ہے پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا, اور وہ گرمی کے وقت اپنے خیمے کے باہر دروازے پر بیٹھا تھا. یہ ابراہیم کے بارے میں ہے کہ ممرے کے بلوتوں میں سے خدا اسے نظر آیا. اب خدا جو ہے اس کا تو کوئی بدن نہیں ہے, لیکن ابراہیم نے دیکھا اسے. روح کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک بدن کو دیکھا, اور ان درختوں میں سے اسے خداوند نظر آیا, اور یہاں پہ لکھا ہے خداوند نظر آیا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ خداوند کا جو لفظ ہے یہ زیادہ تر یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں خداوند کا جو ترجمہ ہمیں ہیبرو لینگویج میں ملتا ہے وہ یاوے ہے, گاڈ ہمسیلف, یعنی یہوہ. تو ابراہیم نے یہوہ کو دیکھا, ابراہیم نے یاوے کو دیکھا, ابراہیم نے خداوند کو دیکھا, ابراہیم نے یسوع مسیح کو دیکھا جو جسم لے کر آیا تھا. مطلب خدا جسم میں نظر آیا ابراہیم کو. تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے, آپ آگے چل کے دیکھیے پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب میں, کہ ابراہیم نے
खुदावंद यीशु मसीह को जो उस वक्त एक बदन लेके आया था, खुदा को, यावे को जो एक बदन लेके आया था, मुजस्सम होकर आया था, उसे खाना पेश किया, उसे पानी पेश किया, आराम करने की जगह मुहैया की। तो यही यावे, यही खुदावंद, यही खुदा जो है मुजस्सम हुआ, जो अब्राहम को नजर आया। प्रेज द लॉर्ड, कहिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। खुदा मुजस्सम हुआ। तो फिर जब खुदा जिस्म लेकर जमीन पर आया यीशु के रूप में, तो यीशु मसीह में बहुत सी खूबियों के साथ दो खास औसाफ हमें नजर आते हैं, और वो ये है कि जीसस वाज अ परफेक्ट मैन एंड ही वाज आल्सो अ परफेक्ट गॉड, क्योंकि खुदा ने बदन लिया था, खुदा मुजस्सम हुआ था। तो अभी हम गौर करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा था। अब भी वो कामिल खुदा है, लेकिन चूंकि बात हो रही है माजी की, बात हो रही है उसके ज़मीन पर आके बसेरा करने की, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा कि वो हमारे दरमियान रहा, खुदा मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो एक बदन लेकर हमारे दरमियान रहा। और याद रहे एक बात खास जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर खुदा बदन लेकर ना आता तो सलीब पर कौन चढ़ता, मसलूब कौन होता? दुनिया की नजात का एक ही जरिया था कि कोई मसलूब होता, तो मसलूब होने के लिए बदन चाहिए था, बस खुदा मुजस्सम हुआ। और मैं अब बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह चूंकि कामिल खुदा और कामिल इंसान था, तो बतौर कामिल खुदा हम खुदावंद यीशु मसीह के चंद मौजज़े जो है उन पे गौर करेंगे। नामुमकिन को मुमकिन में बदल कर दिया, एक ऐसी तब्दीली जो दुनिया में कोई शख्स नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने जब पहला मौजज़ा दिखाया, यूहन्ना की इंजील में ये लिखा है, और लिखा है कि उस घर में जहां पे खुदावंद यीशु मसीह गया, वहां पे मशरूब खत्म हो गया, जो उस जमाने के में अंगूरों का ताज़ा रस पेश किया जाता था मेहमानों को, वो खत्म हो गया। और जब बताया गया खुदावंद यीशु मसीह को कि इनके पास मैं नहीं रही, ये अंगूरों का ताज़ा रस जो शादियों पे मुहैया किया जाता खत्म हो गया है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक मौजज़ा किया, और ये मौजज़ा सिर्फ खुदा कर सकता है। उसने नौकरों से कहा ये मटकों को भर दो, उन्होंने भर दिया, और फिर कहा मटकों में से जो पानी आपने डाला है उनको निकाल लो। और जब वो निकाला तो वो यकसर बदल चुका था, वो नहायत टेस्टी यमी जूस बन चुका था, और जो कि ताज़ा अंगूरों का रस है जो मेहमानों को पेश किया जाता था। प्रेज द लॉर्ड। तो पानी को मैं में तब्दील करने वाला सिर्फ खुदा ही हो सकता है, कहिए हालेलुया। फिर मछलियों के गौर शागिर्दों ने पकड़ लिए। दो मौजज़े हैं, एक तो यीशु मसीह की खिदमत के आगाज़ में यीशु मसीह ने कहा ज़रा गहरे में जाल डालो, और जब शागिर्दों ने गहरे में जाल डाले तो इतना बड़ा गौल मछलियों का आ गया कि उसे पकड़ ना सके, उनके लिए जालों को खींचना मुश्किल हो गया। तो ये कौन कर सकता है? मछलियां इंसानों का हुक्म नहीं मानती, मछलियां जो है किसी मछेरा का हुक्म नहीं मानती। जब हुक्म मिला कि जहां मेरे बंदे जाल डाले हैं, डाल रहे हैं, मछलियों भागो उस तरफ को, और मछलियां वहां भागी और उनके जालों में आ गई। प्रेज द लॉर्ड। और फिर दूसरी दफा यही मौजज़ा हम देखते हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी वकूअ पज़ीर हुआ, और 153 मछलियां जो हैं पतरस ने पकड़ ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ही वाज हिमसेल्फ गॉड। तो खुदा मुजस्सम होकर आया था, वो परफेक्ट गॉड था। फिर हम और मौजज़े भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में कश्ती में था, और कश्ती में जो पीछे जगह थी लेटने की, वहां वो आराम कर रहे थे। जिस्म को आराम भी चाहिए, लेकिन जब कश्ती डूबने लगी और हवा और तुग़यानी जो है उसने तलातम मचा दिया, और शागिर्द परेशान हो गए, और वो सोचने लगे अब हम गए, अब हम मर गए, हमारी उम्मीद जाती रही, हमारी फैमिली का क्या बनेगा, हम तो डूब जाएंगे, हमारी कश्ती डूब जाएंगी, हम मर जाएंगे। लेकिन भूले हुए थे कि खुदावंद यीशु मसीह साथ है। दोस्तों, आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर कभी मुसीबत आ जाए, अगर कभी परेशानी आ जाए, अगर आप तन्हा महसूस करें, अगर आप नाउमीद अपने आप को बना लें और समझें कि देयर इज नो होप, याद रखें जीसस द गॉड इज विद यू। प्रेज द लॉर्ड। जो ही उन्हें याद आया, उन्होंने कहा ए साहेब, ए खुदावंद हम मरे जाते हैं, हमें बचा। और लिखा है खुदावंद यीशु मसीह उठ खड़े हुए, उन्होंने हवा और पानी को डांटा, और हवा थम गई, पानी साकन हो गया, तूफान रुक गया,
तूफानों को सिर्फ वही थमा सकता है जो खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भैया के वक्त वो इंसान भी है और खुदा भी है। वो सो रहा था, आराम कर रहा था, लेकिन जब हवा और पानी को डांटा तो वो सिर्फ खुदा ही है। और एक और बात याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी कोई मौजज़ा करने से पहले दुआ नहीं की और ये नहीं कहा कि ऐ खुदा तू मौजज़ा कर, बल्कि खुदावंद ने कहा और हो गया। और ये खुदा ही है जो कहता है और हो जाता है। जैसे शुरू में हमने देखा खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो हो गई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने तमाम मौजज़ों के दौरान ऐसा ही किया। उसने लाजर से कहा लाजर निकला, उसने ये नहीं कहा ऐ खुदा मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि लाजर को जिंदा कर। जी नहीं, वो खुद खुदा था। उसने कहा लाजर निकला और मौजज़ा हुआ और लाजर कफन से बंधा हुआ बाहर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट वॉज गॉड, ही इज गॉड। वो परफेक्ट गॉड बन के इस जमीन पर आया, मुर्दों को जिंदा किया। फिर एक मुर्दे का मैंने जिक्र किया है, लेकिन बाइबल में 3 मुर्दों का जिक्र है जो जिंदा किए, बेशुमार किए, लेकिन 3 का जिक्र हमें बाइबल में मिलता है। दूसरा वाक्य आपको याद होगा, यायर नाम एक शख्स की बेटी जो 12 साल की थी, उसको यीशु मसीह ने कहा उठ त्रीता कौमी, उठ ए लड़की, और वो उठ खड़ी हुई। तो ये खुदा ही है जो हुक्म देता है और सब कुछ वजूद में आता है। फिर एक और शख्स जो मर चुका था, नाइन शहर की बेवा का बेटा, यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो जिंदा हो गया। ये कौन है? ये खुदा है। और जब खुदावंद मौजज़े करता था, शागिर्द परेशान होकर कहते थे ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? ये खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। कोड़ियों को पाक साफ किया। और कोड़ एक ऐसा मर्ज था, उस जमाने में तो बहुत ज्यादा था और आज भी है। पाकिस्तान में जो मकरान का इलाका है वहाँ पे ये काफ़ी फैला है और वहाँ पे इलाज गाहें भी बन चुकी हैं। और भी अफ्रीकी मुल्क हैं जहाँ पे कोड़ है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रहा था इसका इलाज भी नहीं था और कोड़ी शख्स को जो थे उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था। लेकिन जब खुदावंद के पास आए, यीशु मसीह ने कहा जाओ मैं तुम्हें पाक साफ करता हूँ। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। एक दफा तो उसने 10 कोड़ियों से कहा जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और जब वो काहिनों को दिखाने के लिए इस ईमान पर चल पड़े कि काहिनों को तो सिर्फ वो दिखाते थे जो पाक साफ हो चुके थे, वो ईमान लाए यीशु मसीह पे कि जो उसने बतौर खुदा का है वो सच है। वो चल पड़े अपना बदन दिखाने के लिए कि ये पाक हो चुका है। और जैसे ही वो ईमान से रवाना हुए काहिनों की तरफ जाने के लिए, वो पाक हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हर तरह के बीमारों को शिफा दी, हर तरह के। 38 साल से एक मरीज जो बेड के ऊपर पड़ा था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उठ अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर ये कौन है? ये खुदा है। 38 साल से एक मफलूज जिसका मतलब ऑलमोस्ट डाइड, वो मरा हुआ था, हिलने जुलने की हिम्मत नहीं थी। यहां तक हिम्मत नहीं थी कि वो चंद कदम चल के एक हौज तक जा सके, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा और चल। फिर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हर तरह के मौजज़े करता है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा के साथ कामिल इंसान था और इंसान उसका बनना जरूरी था, क्योंकि इंसान बन के इंसानों के दरमियान रहकर उसको अपने मौजज़ात दिखाने थे, तालीम देनी थी और उसे फिर मसलूब होना था। और चरनी में एक बच्चा इसलिए आया क्योंकि बच्चा बन के उसको बड़ा होकर सलीब पर जाकर अपने मकसद को पूरा करना था, और वो मकसद यह था कि दुनिया निजात पाए। कहिए हालेलुया। तो यीशु मसीह एक कामिल इंसान था। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मैं एक और बात बड़ी खूबसूरत बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह बतौर इंसान भूखा होता था, भूख लगती थी। क्योंकि हमें बाइबल में नजर आता है यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में कि खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी और उसके शागिर्द खाना लेने के लिए गए। तो बतौर इंसान उसे भूख लगती थी, लेकिन खुदा होने की हैसियत से वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। वो जिंदगी की रोटी है। हालेलुया, हालेलुया। और प्यास लगने का एक वाकया हमें मिलता है, जबकि और मौकों पे भी जिस्म रखते हुए अपनी तकरीबन 33 साल जिंदगी में यीशु को प्यास लगती थी, वो पानी पीते थे। लेकिन एक वाकया नजर आता है, सलीब पर यीशु ने कहा आई एम थर्स्टी, उससे प्यास लगी। लेकिन याद रखें खुदावंद यीशु मसीह बतौर खुदा जिंदगी का पानी है। उसने यूहन्ना की इंजील में हम एक वाकया देखते हैं, सामरी औरत से कहा अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, तो जो तेरे अंदर जिंदगी के पानी की नदियों की तरह बह निकलता। तो वही खुदावंद
जो जिस्म लेके आया उसे प्यास लगती थी, लेकिन बतौर खुदा वो जिंदगी का पानी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर वो थका मांदा भी होता था, उसे थकावट भी होती थी। और ये यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि यीशु जो ही थका मांदा एक कुएं पे बैठ गया, क्योंकि दिन रात काम, सारा दिन खिदमत, सारी रात दुआ, तो यीशु मसीह जिस्मानी तौर से थक जाता था, लेकिन उसकी थकावट उसके खुदा होने में आड़े नहीं आती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो थक गया, लेकिन एक औरत से जब वो बात कर रहा है, सामरी औरत से, बतौर खुदा उसने उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए, उसके सारे गैबी गुनाह जो वो छुपाई फिरती उसे बता दिए। और वो औरत ये कहती है कि ऐ खुदावंद तू कौन है? और जब पता चला कि ये खुदावंद है, मसाया है, तो उसने अपने गांव में जाके बताया। और फिर हम देखते हैं कि जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो कहा, ऐ औरत, अब हम तेरे कहने ही से नहीं, ऐ औरत, अब हम तेरे कहने ही से नहीं, बल्कि हमने देख लिया है, हमने जान लिया कि फिल हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा यही है, यही खुदावंद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जिसे थकावट होती थी वो खुदा भी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया नींद आने का, कि यीशु मसीह को नींद आती थी, लेकिन यही बात एक ज़बूर में हम पढ़ते हैं, जहां लिखा है, तेरा राखा ना कदी हंगलावे ते तेरे रब नू नींदर भी ना आए। वो जागता रहता है, अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। खुदावंद जो है अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है। जिस्मानी तौर से नींद आती थी, लेकिन खुदा होने की हैसियत से वो जागता है और अपने लोगों के लिए हर वक्त उनकी दुआओं सुनने के लिए तैयार रहता है। 24 घंटों में किसी लम्हे भी आप यीशु मसीह का नाम लेके दुआ करें, वो जाग रहा है आपकी दुआ को सुनने के लिए। फिर एक और बात, खुदावंद यीशु मसीह आपकी तरह, मेरी तरह इस दुनिया में होते हुए, जिस्म रखते हुए आजमाया गया, उसकी आजमाइश हुई। लेकिन याद रखें, जब वो आजमाया गया तो बतौर खुदा तमाम आजमाइशों पर गालिब आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने शैतान से कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। आप भी ऐसी कुदरत रख सकते हैं, अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, आप शैतान को हुक्म दे सकते हैं, ऐ शैतान दूर हो। यीशु मसीह अपनी कुदरत के साथ यह ऐसे इसी तरह के मौजज़े करता था। बोले प्रेज द लॉर्ड, कहिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। फिर आज चूंकि बड़े दिन का मौका है, क्रिसमस का मौका है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। शायद इस वक्त आप खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, शायद आप दोस्तों को तोहफे तोहफ़ दे रहे हैं और टीवी पे ये पैगाम सुन रहे हैं या यूट्यूब पे ये पैगाम देख रहे हैं। जहां भी आप हैं, आप खुशी में हैं, आप मुसरत में हैं, आप शादमानी में हैं, क्योंकि आज के दिन मुनजी खुदावंद यीशु मसीह जिस्म लेकर इस जमीन पर आया और उसने हमारे लिए निजात का दरवाजा खोल दिया। एक बार फिर आपको मैं मैरी क्रिसमस कहता हूं। और वो खुदावंद जो आज से 2000 साल पहले चरनी में पैदा हुआ, दफन हुआ, फिर जी उठा, बड़ी कुदरत के साथ आसमान पे चला गया, बड़ी कुदरत के साथ वापस आने वाला है। और फिर एक और बड़ा दिन भी है, एक और बड़ा दिन। एक बड़ा दिन हमने यीशु मसीह के पैदा होने पे मना रहे हैं, दूसरा बड़ा दिन यीशु मसीह का जी उठना है, बहुत बड़ा दिन है। और एक और बड़ा दिन है, यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है, रैप्चर होने वाला है। एक बड़ा दिन होगा, कलीसिया आसमान पे उठा ली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रैप्चर होगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा एक बड़े मौजज़े के साथ, बड़ी कुदरत के साथ, अभी अब फिजा में ही होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। लेकिन वहां दो तरह के लोग होंगे, वो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दिया, निजात पाई, यीशु मसीह को अपना निजात दीदा कबूल करके यीशु के लहू को पुकार के जिंदगी पाई, नई पैदाइश पाई। वो अगर खुदावंद के साथ चल रहे हैं और उनके चिराग जो हैं, वो उनकी मशलें जो हैं वो रोशन है, तो वो आसमान पे उठा लिए जाएंगे। ठीक है, अगर वो तैयार हैं। लेकिन गुनहगार जिन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया, जिन्होंने कहा ओ ये तो भाई मिशन की तालीम है, उन्होंने तौबा नहीं की, खुदा उनके कलाम को रद्द किया। अगर किसी ने यीशु मसीह के कलाम को रद्द कर दिया है, मैं बताना चाहता हूं अभी मौका है। आप चाहते हैं कि ये बड़ा दिन आपके लिए बड़ा दिन हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि ये क्रिसमस आपके लिए एक खूबसूरत क्रिसमस हो जाए, मिसाली क्रिसमस हो जाए, हिस्टोरिकल क्रिसमस हो जाए, और आप बता सकें कि मैंने 2023 के क्रिसमस के मौके पे खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया? आपसे ही कहना चाहता हूं अभी
अपने सर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और कहें, ऐ खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाह माफ कर, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर दे और मुझे निजात बख्श दे। अगर आप दिल से ये कहेंगे, यीशु मसीह आपके गुनाह माफ कर देगा। और उसके बाद आप ईमानदारों को बताइए, पास्टर्स को बताएं कि मैंने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। फिर वो आपको आगे बताएंगे अगला कदम क्या है। और फिर अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी में कायम रहें, खुदा उनकी रास्तबाजी में जिंदगी बसर करें। और आखिर में एक आयत बतौर इतलाक आपके सामने रखना चाहता हूं, और वह है तीतस का खत, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। यहां लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहो, जिसका मतलब है वेट फॉर द अपीयरिंग ऑफ द ग्लोरी ऑफ ग्रेट गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब है कि सेवियर जीसस क्राइस्ट जो है वही खुदा है, बुजुर्ग खुदा है। बुजुर्ग खुदा जो है वही यीशु मसीह है, और इस खत में कहा गया है उसके ज़हूर के मुंतज़िर रहो। दोस्तों, आपने क्रिसमस मनाया है, अभी नए बड़े दिन का इंतजार करें। यीशु मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, वो आ रहा है अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।